a second, one person goes blind in the world and one child goes blind every minute. Now, how can you help them? What is your role? How can you manage or you rehabilitate those who cannot see like you see? First of all, you have to take the history, then you have to diagnose and refract, then you have to assess visual field, and then you have to assess the functional vision of the patients. In history of a Lovian patient, you are not concerned with the lost vision of the patient. The lost vision has lost, and it is irreversible vision loss. You are more concerned with the residual vision, so you ask the patient what difficulties you face, right? What problems you face in your daily routine, what problems you face in your daily activities, professional activities, educational activities, and personal care. So this is basically the history of a Lovian patient. Then diagnose with regular methods which you use like ophthalmoscopy, slit lamp examination, and 90D refraction. We always say it is bilateral visual impairment, it is irreversible visual impairment, but we perform refraction. We will discuss the significance and importance of refraction later. Then we assess visual field, because the WHO has discussed visual acuity and visual field in its definition, and WHO has declared these two the most important parameters of visual functions to be assessed in every patient. So although we have 5 visual functions, right? The 5 visual functions we already know, but according to WHO definition, we have to assess visual acuity and visual field in a Lovian patient. Then you go to assess functional vision in patients. What is functional vision? It is how the person performs with his or her visual functions. Key points about Lovian to remember are: it is always bilateral. A bilateral visual function loss. It is always irreversible. Visual acuity will be less than 618 in the better eye, and visual field will be less than 20 degrees from point of fixation. And you have to focus on the residual vision and not on the lost vision. Here, you cannot use Snellen visual acuity charts, you cannot use counting finger, you cannot use hand movement. You have to use specific charts which are based on Logmar design. So those specific charts are from Belle-Love, Low Vision Resource Center, LVRC, and Berkeley Rudimentary Vision Testing. What is the purpose? The purpose is to identify desired visual acuity. What patient wants to see. The most important thing in Lovian assessment is what patients want to see. Identify the desired visual acuity and identify residual visual functions after vision impairment. And low vision works on the principle of magnification. It is all about magnification. Why refraction is important? I have discussed that refraction is not going to help patient, right? If it is 618 or it is 660, he may become 6/48 after refraction, but it is not going to help you till 6/6. पेशेंट को आप 6/6 नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि रिफ्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट. यू हैव टू परफॉर्म रिफ्रैक्शन बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग. आपके पेशेंट की एक लाइन भी इंप्रूव हो रही है, एक वर्ड भी इंप्रूव हो रहा है, आपने करना है. इवन पेशेंट की ब्राइटनेस भी इंप्रूव हो रही है. पेशेंट कहता है मुझे अब ब्राइट नजर आना शुरू हो गया, पहले से मुझे क्लियर नजर आना शुरू हो गया, कंट्रास्ट इंप्रूव हो गया, तो वो भी उसके लिए ब्लेसिंग है, वो भी करना है. असेसमेंट का एक फॉर्मूला जो बहुत इजी, बहुत क्विक है, वो याद रखें. एक्चुअल विजुअल एक्यूटी डिवाइडेड बाय डिजायर्ड विजुअल एक्यूटी. जितनी पेशेंट की एक्चुअल विजुअल एक्यूटी है उसको डिवाइड कर दे डिजायर्ड विजुअल एक्यूटी से, आपके पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी. दीज आर डिफरेंट टूल्स which we use for Lovian assessment.
I discussed earlier that in rehabilitation, something is better than nothing. Then we have optical devices, non-optical devices, electronic devices, and other complex devices which use other technologies. Here you can see binoculars. Binoculars are basically telescopes for both eyes. Then you can see pinhole glasses, stand magnifier, and monocular telescope. Here is the CTV device, which is specially designed to see television. These are the near vision devices: spectacle magnifiers, stand magnifiers, handheld, pocket, and Fresnel book magnifiers. We have practical demonstration of all these magnifiers. This is how a patient reads through Fresnel book magnifier. This is called pocket magnifier. This is small in size. Other assistive devices are CCTV. CCTV are mouse models, desktop, and reader devices. These are the examples of CCTV, and this is portable CCTV, which is also called digital CCTV. In non-optical devices, we have notex to identify currency, letter writer, which is also called typoscope, and signature guide. You are helping people with vision loss say yes to life. Any questions? Thank you. We are discussing Lovian rehabilitation here. Specifically, what is pediatric Lovian assessment? एक मिथ है कि क्लिनिकली जब हम पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक मिथ है कि VN will get worsen if used for school learning. जैसे ही लोवियन डायग्नोज होती है तो सबसे पहला काम ये होता है पेशेंट के साथ कि सारी एक्टिविटीज एजुकेशनल और रिक्रिएशनल और हर चीज लाइफ से कट ऑफ हो जाए. तो सबसे पहले बच्चे का जो राइट एक छीना जाता है वो ये कि वो स्कूल छोड़ दे, और उसमें ये होता है कि आप सबसे पहला काम स्कूल छोड़ दे, घर में बैठ जाए, बिल्कुल नहीं जाएगा. ठीक, यहाँ हम एक लोवियन स्टार मसीरा को डिस्कस करेंगे. 10 साल की मसीरा 2020 में डायग्नोज हुई कि इनको लोवियन विजुअली इम्पेयर्ड है, और कॉन्स डिस्ट्रॉफी के साथ ये वो हुई. स्टारगर्ट्स डिजीज थी इनको. मल्टीपल एग्जामिनेशन के बाद उन्हें पता चला पेरेंट्स को कि विजन जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी मजीद, और मैकुलर डिस्ट्रॉफी के साथ हर एग्जामिनेशन फ्रॉम मल्टीपल क्लिनिशियन शोज मैकुलर डिजीज. पेरेंट्स वर काउंसल्ड अबाउट irreversible VN loss. The news was very shocking. First they denied, and then after consultation from many ophthalmologists it was thought to be a fate. And इस केस में जो मजे की चीज थी वो ये थे वो ये कि पेरेंट्स इस चीज पे सबसे मल्टीपल लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, और वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो इस इरिवर्सिबल लॉस VN लॉस को रिवर्स कर सके. तो ये सवाल जब आप लोग क्लिनिकली डील करोगे पेशेंट्स को तो सबसे ज़्यादा इससे फेस करोगे. पेशेंट को ये न्यूज़ ब्रेक करना कि विजन अब वर्स हो गई है या VN लॉस है, ये मज़ीद लॉस होगा, ये वापस रिवर्स नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा जो हार्ट ब्रेकिंग है. ये आप लोग नहीं करते हो, ये हो के आएगा. फिर जब आपके पास आएंगे तो उनके पास एक होप होगी. उनको ये कहा जाता है कि लो VN में चले जाओ, अब वहाँ से सोल्यूशन है. अब पेशेंट आपके पास आ गया है और उसका जहन में ये है कि यहाँ से हमें VN शायद वापस मिल जाए. सबसे पहला काम ये कि कभी भी फॉल्स होप नहीं देनी है. जो रिवर्सिबल पहले ही जैसे बात कर दी है, डेफिनेशन ही ये है कि VN लॉस इरिवर्सिबल है. और मैडम ने आपको लो VN असेसमेंट में ये बात बताई
कि अब जो आपका गोल है, जो हमारा गोल है, लोवियन क्लिनिक का काम है, वो ये कि जो रेजिडुअल एबिलिटी है, जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट, रेजिडुअल एबिलिटी को देखना है और पेशेंट फिर बार बार आंसर करेगा। ये मैं आपको इस वजह से इस पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रही हूँ, रादर उसको छोड़ के, कि हर पेशेंट इस टाइप की रिहैबिलिटेशन के लिए सूटेबल केस नहीं होगा। हर एक को आपने एक ही उस पे नहीं डालना। आप उसको एक्सेंट्रिक फिक्सेशन या आप रिहैबिलिटेशन के एक मैन्यूवर पे डाल रहे हो, बट प्रीवियसली दे हैव इन देयर माइंड कि अब कुछ बेस्ट या बेटर होगा। जब लोवियन में हम देखते हैं तो लोवियन में रिहैबिलिटेशन के, जैसे मिस आयशा ने डिस्कस किया कि डिवाइसेस के थ्रू हम विजन को डिजायर्ड विजन पे ले जा सकते हैं, ठीक। दिस इज एक मेथडोलॉजी है। एंड द अदर मेथडोलॉजी इज कि आप एक्सेंट्रिक फिक्सेशन से रेजिडुअल एबिलिटी को विद थेरेपीज इतना स्ट्रेंथन करते हो, इतना इम्पार्ट करते हो कि वो उनकी फंक्शनल एबिलिटी को रिस्टोर करने लग जाए, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहला काम एक लोवियन कंसल्टेंट या क्लिनिशियन का ये है कि वो उसको इस लेवल पे पेशेंट के जितने भी अटेंडेंट हैं या पेशेंट है उसको उस पे लेके आए कि व्हाट दे वांट, पेशेंट क्या चाहता है। हर पेशेंट इसी उस पे नहीं है कि हम एक ही उस पे चलते जाएं, ठीक, क्योंकि यहाँ क्लियरली लोवियन के अंदर ये बात पहले ही बता दी जाती है क्लिनिशियंस को कि कोई ऐसा पेट डिजायर्ड सॉल्यूशन नहीं है कि ये कोई आप मेडिसिन दे दो या ये ग्लासेस दे दो या ये रिफ्रैक्शन कर दो एंड पेशेंट की विजुअल एबिलिटी वापस रिस्टोर हो जाए। अब पेशेंट का लाइफस्टाइल आपने पूरे का पूरा डिजाइन करना है। पेशेंट को आप एक पूरा डिजाइन पैकेज ऑफर नहीं कर सकते, इंपोज नहीं कर सकते, ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि आपके पास अगर कोई बच्चा आता है तो उसको आपने रिहैबिलिटेशन किस लेवल पे डालनी है। सबसे पहले जब वो आपके मैनेजमेंट प्लान के साथ एग्री है, ठीक, जब वो एग्री है तो फिर अब आपने देखना है कि मैनेजमेंट प्लान आपने डिजाइन किया है एक स्टूडेंट के लिए, लाइक मसीरा, ठीक, या आपने किसी एम्प्लॉयर के लिए किया है, ठीक है, कोई एम्प्लॉयर है या कोई अकाउंटेंट है या कोई रिटायर्ड ऑफिसर है, ठीक है, या कोई हाउस होल्ड है। इन सब के लिए आपका मैनेजमेंट प्लान टोटली डिफरेंट होता जाएगा। तो जब आपने मैनेजमेंट प्लान डिराइव कर लिया और फिर आपका पेशेंट उसके ऊपर आ गया तो फिर आप क्या क्या करते हैं ये हम देखते जाते हैं। ट्रीटमेंट पे ये वो सारे सवाल हैं जो पेरेंट्स करते हैं। ये हर चीज से वो पहले बिल्कुल अवेयर्ड होते हैं, काउंसल्ड होते हैं और उनको पता होता है कि ये ग्लासेस के साथ, सर्जरी के साथ, ट्रांसप्लांट आजकल चूंकि न्यू एरा में बहुत ज़्यादा एडवोकेसी हो चुकी है कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या ऑक्यूलर ट्रांसप्लांट या मैनी चीज़ें, आंखें नहीं लगा देना, ये सवाल होता है कि आंख लग जाए। जिस तरह इस पेशेंट की मदर का सवाल था कि क्या मेरी आंख मेरे बच्चे को लग सकती है। पेरेंट्स चूंकि उसमें आके तकलीफ में जब वो इस तरह के उसमें होंगे, जाहिर है जब ये ब्रेक होगी न्यूज़ के, अब आपका बच्चा गोइंग टू बी ब्लाइंड है, ठीक है, अब जितनी विजन है ये भी ख़त्म हो जाएगी, तो उस पर उनका हर एक्सट्रीम उस पर आपका सवाल होगा। ये सारी चीज़ें लो विजन में इनका कोई लेना देना नहीं है। तो आप उनको क्लियरली, उनको सबको पता है, लेकिन फिर भी आपने उनको काउंसिल करना है कि मे बी ग्लासेस के साथ थोड़ा बेनिफिट हो, मे बी किसी और ट्रीटमेंट के साथ हो, लेकिन ट्रांसप्लांट क्या है ये भी सारी चीज़ें उनको आपने बतानी है। अब देखें, मदर बस्ट इनटू टीयर्स, ये आपके साथ होगा, ठीक, आपने उनको किस तरह उसमें से निकालना है, ये सारा स्ट्रेटेजिकली स्टेप बाय स्टेप प्लान है जो आप क्लिनिक्स में देखते आ रहे हो, ठीक है। और पेरेंट्स वाज आस्किंग फॉर ऑक्यूलर ट्रांसप्लांट, दे आर रेडी टू बी अ वॉलंटियर डोनर, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। लोवियन क्लिनिक का पुराना सेटअप आपके बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे, दो आप में से फेमिलियर नहीं है, इकरा वाज देयर, और इकरा की एक लोवियन गैलेक्सी कंट्रीब्यूशन भी वहाँ मौजूद है। स्पेक्टिकल विद डार्क ब्लू फिल्टर उसको दिए गए, वीएन इम्प्रूव्ड 0.8 काउंटिंग फिंगर से 0.8 लॉगमार जो कि 624 है,
8x मैग्निफिकेशन इन फॉर्म ऑफ कैप्लेरियन दी गई है, तो उसकी VN 66 हो जाती थी। और उसको फिर स्पेस फिक्सेटर, जैसे कि आपने लोवियन क्लिनिक में देखा, सवाल ये है कि विजन अगर टेलीस्कोप के साथ इंप्रूव होती है तो उसे हम फंक्शनल कर सकते हैं, परमानेंटली उसको उसकी विजन का पार्ट बनाया जा सकता है कि नहीं, ये एक सवाल है। फंक्शनल होने का मतलब ये है कि पेशेंट के विजुअल फंक्शन को इतना इन्हांस कराया जाए कि वो उसका हैबिटेंट फंक्शन बन जाए, कि उसको हर चीज़ उसके साथ परफॉर्म कर रही है, वो उस पर परफॉर्मेंस डेवलप करना शुरू कर देगा। जब उसको आप डायरेक्ट उसकी विजन लोगे वो उतनी ही होगी। ये नहीं हम कह सकते कि क्वांटिटेटिवली एकदम से इम्प्रूवमेंट आ जाए, आती भी है, आप लोग देखते हो पेशेंट्स को, लेकिन हर एक पेशेंट में ये नहीं है। अब जब आपने इसको फंक्शनल करना है तो आपने कोई एक लोकस डेवलप करवा लिया वियन एक्सेंट्रिक फिक्सेशन में, तो अब आपने उसको फंक्शनल करना है एक लिमिटेड कोन्स के या रेटिनल एरिया को फंक्शनल करने के लिए, उसका फील्ड डेवलप करने के लिए आप स्पेस फिक्सेटर करवाते हो। जैसा कि हमने इनको बार बार स्पेस फिक्सेटर की थेरेपीज दी और उनको ट्रेन किया कि वो अपने जो वियन काउंटिंग फिंगर से बेस्ट, अभी आपने पीछे देखा कि जब हमने बेस्ट रिफ्रैक्शन किया तो 624 हुआ। जैसे मिस आयशा ने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन लो वियन में कितनी इंपॉर्टेंट है, और कभी भी आप प्रीवियसली रिफ्रैक्टेड पेशेंट की जो वो है प्रिस्क्रिप्शन, उसके ऊपर बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते। लो वियन रिफ्रैक्शन एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंड आप बहुत अच्छे से उसके साथ फेमिलियर हैं। और फिर जब आप डिवाइसेस के साथ रिहेबिलिटेशन दे रहे हो तो पेशेंट 6 हो रहा है, और जब डिवाइसेस की थेरेपी देने के बाद न्यू लोकस, न्यू गुड रेजिडुअल फोवियल एरिया को जब आपने स्टिमुलस दिया है तो उसकी अनएडेड वियन विदाउट लो वियन डिवाइसेस 0.6 हो रही है। मतलब कि रिफ्रैक्शन से 0.8, 2 लाइन्स मोर इम्प्रूव, 20% मोर इम्प्रूव विद जस्ट लो वियन थेरेपी जो कि आपने डिवाइस के साथ दी है। अब इस वियन को आपने कैसे फंक्शनल करना है, ये आपने उसको डिफरेंट थेरेपीज के साथ उस पर करना है ट्रेन, और ये थेरेपीज वो अपने घर में, आप 45 मिनट की थेरेपी क्लिनिक में दे रहे हो और प्रपोज कर रहे हो एक डिज़ाइन प्लान, ताकि वो इसको कंटिन्यूअसली परफॉर्म करता रहे। हम इस पे 45 मिनट का एक सेशन घर में देने को कहते हैं, और इसको हम कहते हैं कि 2 टाइम कम से कम ये थेरेपी परफॉर्म करे, ताकि न्यू स्टिमुलेटेड लोकस जो है वो फंक्शनल किया जा सके। और नियर वियन के लिए आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत यहाँ पर एक और ऐसी चीज़ है, जब हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो बहुत सारी स्टडीज़ की हैं कि डिफरेंट उसके साथ, अगर आप लिटरेचर उठा के देखेंगे, बहुत सारा शायद पब्लिश्ड ना हो, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर काम किया कि जब हम थेरेपी दे देते हैं तो बाकी लो वियन के अंदर जो बाकी फंक्शन हमने एग्जामिन किए थे, जैसे मैडम ने आपको बताया, क्या उनमें भी कोई इम्प्रूवमेंट आती है? क्या विजन में इम्प्रूवमेंट आएगी जब आपने उसको लो वियन थेरेपी दे दी? क्या उसको नियर वियन के लिए कोई मैग्निफिकेशन ज़रूरत चाहिए होगी कि नहीं? तो इसके ऊपर जो अब हमने इस साल स्टडी की है 65 पेशेंट के ऊपर, तो हमने देखा MN रीड चार्ट के साथ कि जैसे ही लो विजन थेरेपी दी जाती है तो उसकी रीडिंग एबिलिटी विद स्पीड, रीडिंग स्पीड दोनों में एक रिमार्केबल डिफरेंस आता है। हाँ, ये डिपेंड करता है, जिसमें अब जैसे एज ग्रुप के साथ इसका इसे मजीद जब हम और डिफरेंट स्टडीज़ के साथ इसी स्टडी को लेकर के चलेंगे तो हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो 12 साल से 25 साल के बीच की पॉपुलेशन है, दे शोड वेरी गुड डिफरेंस आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर लो वियन थेरेपी इन रीडिंग स्पीड एंड नियर वियन, अनएडेड रीडिंग स्पीड और नियर वियन। और जो हमारे पास 30 एंड
80 ईयर के बीच की पॉपुलेशन है, उनमें हमें कुछ में डिफरेंस मिला है, कुछ में नहीं मिला। इसके ऊपर एक और स्टडी की जा सकती है कि क्या ऐसी चीज थी जो हमें इस पॉपुलेशन में मिल रही है, उस पॉपुलेशन में नहीं मिल रही। तो अब यहाँ रिस्टोरेशन ऑफ वीएन, यहाँ पर ये सवाल जिस तरह मैं अभी आपके सामने पूरी एक साइंटिफिक सेशन डेवलपमेंट की, जो अगली एक तकरीबन पूरी बन रही थी प्रेजेंटेशन, उसको यहाँ मैंने डिस्कस किया है। अगर आपका कोई सवाल हो तो इस पे चल सकते हैं। यहाँ हमने इसको ग्रे फिल्टर दिए हैं, इसके ऊपर कोई सवाल है किसी का? ग्रे फिल्टर हमने मैकुलर डिस्ट्रॉफी वाले को दे दिया। चूंकि आप लोग लो वीएन करते हो, इसलिए मेरा आपसे सवाल है। वाह जी, 648 से 618 उसकी वीएन थी, और ये पेशेंट 22 में हमने किया था, और इसको अब जब मैंने देखा है तो इसकी 618 वाली वीएन इस वक्त 648 है। 2025 में इसकी जो वीएन है 648 है, गुड रिफ्रैक्टेड वीएन, और जिसके साथ ये हैबिचुअली फंक्शनल है वो 360 वीएन है। एक सवाल इसी केस से रिलेटेड ये है कि क्या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है कि हम अपने पेशेंट को लो वीएन रिहैबिलिटेशन के ऊपर जो प्रपोज्ड प्लान दिया था उस पे स्टेडीली चलाते रहें? आपके पास कोई इसका कोई सॉल्यूशन, आपके जहन में कोई सजेशन है? मेरा सवाल ये है कि यही पेशेंट 2022 में ये वीएन दे रहा है, ठीक है, 3 साल के बाद 2 साल का फॉलोअप स्किप करके वो दोबारा आता है, और इसी तरह अपनी तालीम उसने जारी रखे हुए स्कूल जा रही है ये मसीरा, ठीक है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटेटिव वीएन है वो जो कि पहले 618 हो चुकी थी, और इन्होंने हमें कोई 1 साल फॉलोअप दिया 618 वीएन के साथ, 1 साल फॉलोअप दिया, उसके बाद इन्होंने फॉलोअप स्किप किया। बीच में हमारा कंस्ट्रक्शन का पीरियड चल रहा था, बहुत सारे पेशेंट हमारे लो वीएन के लॉस हुए फॉलोअप के उसमें, और वो हमने इस पेशेंट को इस साल देखा तो उनकी वीएन 648 विद रिहैबिलिटेशन के बाद है। हर टाइप का लो वीएन असेसमेंट करने के बाद, लो वीएन रिहैबिलिटेशन का जो प्रपोज प्लान है वो देने के बाद उसकी जो रिस्टोर्ड वीएन है वो 648 है। तो मेरा सवाल है आपसे कि ये जो गैप आ गया, क्या ये फॉलोअप मिस करने से आया है या डिजीज के प्रोग्रेसिव होने से आया है? ठीक है, ये भी कह सकते हैं क्योंकि उस वक्त 6। अच्छा, एक और चीज यहाँ मैं इसमें एडिट नहीं है, लेकिन इसी केस में मैं आपको ऐड करके बताती हूँ कि जब हमने इनको यहाँ हमने पीछे देखा कि हमने 8x मैग्निफिकेशन दी है तो वीएन रिस्टोर होती है 0.00 तक, 6 पे चली गई है। अब हमारे पास मसीरा की वीएन 618 तक रिस्टोर होती है विद मैग्निफिकेशन, ठीक है। जो आपका सवाल इस तरह से बिल्कुल ठीक है कि जो उस वक्त तक फोवियल एरिया था अब उसमें लॉस बढ़ गया है। जो उस वक्त फोकस लोकसीज थे अब उनमें से कुछ डिजेनरेट कर चुके हैं। तो अगर पेशेंट इस तरह से 2 साल में वीएन और डिक्रीज कर जाता है वीएन के लिहाज से, तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जिसे हम उसे फंक्शनल रखें उस तक स्टेडीली? उसने बिल्कुल थेरेपी नहीं की, उसने घर में बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दी।
एबिलिटी लॉस कर जाता है। और मजे की बात ये यहाँ पर इसी उसमें आपको ऐड करूँ कि उसकी रीडिंग एबिलिटी, उसकी नियर विजन कम होने के बावजूद भी उसकी रीडिंग एबिलिटी चल रही है, वो लिख भी रही है और पढ़ भी रही है विदाउट एनी मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कुछ भी नहीं। उसने जिस काम पे फोकस रखा है वो उसके साथ जा रही है, वो जिसके साथ उसका ज़्यादा लेना देना उसने नहीं रखा अपनी डिस्ट्रेस विजन के साथ, उसमें उसने मेजरली लॉस किया है। तो अगर वो डिस्ट्रेस विजन के साथ रिस्टोर्ड होती है तो उसकी बाकी एबिलिटीज ऑटोमेटिकली डेवलप करेंगी या रिस्टोर्ड रहेंगी या फंक्शनल रहेंगी। लेकिन कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, मेरा सवाल फिर वही है कि हम अपने पेशेंट को इस पे ला सकें कि वो अपने विजन के लॉस को, हम इस पे तो बिल्कुल क्लेम नहीं करते कि शायद कि ये अगर वो कंटिन्यू रखेगा तो उसकी विजन नहीं डैमेज होगी या डिक्रीज नहीं करेगी। अगर हम ये पेशेंट को ये कहना शुरू कर देते हैं तो पेशेंट का सवाल हमारे से बढ़ना शुरू हो जाता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है तो लॉस होगा, लेकिन फंक्शनल एबिलिटी पे हम एक चीज़ क्लेम करते हैं बार बार कि अगर वो हमारे प्रपोज प्लान के साथ चलता रहेगा तो मे बी वो एबिलिटी लॉस ना करे। तो एक सवाल जो अब यहाँ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, चूँकि हमारी वो ऑडियंस नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जो ऑडियंस है उस लिहाज से मैं मिस आयशा चूँकि चेयर्ड है तो मिस आयशा, हो सकता है इनमें से कोई एक, जिस तरह हमारी बरीरा स्पेशल एजुकेशन में काम कर रही हैं, आपको पता होगा आपकी एक सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट उसकी अपॉइंटमेंट हुई है रिसेंटली स्पेशल एजुकेशन में, तो हो सकता है कल को आप में से कोई एक स्पेशल एजुकेशन में चाहे, या वैसे अगर आप अपनी क्लिनिकल सेटअप में बैठते हो तो बहुत सारे आपको बच्चे इस एज के मिलेंगे। जैसे हमने स्टार्ट में ये बात कही है कि हमारा सवाल फिर वही है कि पेरेंट्स कहते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड है तो 90% क्लिनिशियन उनको ये काउंसिल करते हैं कि अगर विजन यूज की गई स्कूल एजुकेशन में या पढ़ता रहा तो विजन खत्म हो जाएगी। मतलब कि जो एबिलिटी है लगता है कि ऐसे जैसे कुछ रिजर्वायर था वो यूज हो गया तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये एक मिथ है, और ये मिथ सिर्फ आम कॉमन पीपल में नहीं है, ये क्लिनिशियंस के बीच में से आ रही है। ठीक है, इसको आपने डील करना है। बहुत सारे क्लिनिशियंस पेशेंट को ये काउंसिल करते हैं कि अब आप इसके काम छुड़ा दो, अब आप इसका स्कूल छुड़वा दो, अब इसकी नज़र ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। ठीक, तो अब अगर वो विजन लॉस पे जाता है तो मेन स्ट्रीम से उठा के उसे स्पेशल एजुकेशन में डाल दिया जाएगा। ये है सबसे बड़ा चैलेंज जो अब आपको देखता है, जबकि हम पूरी दुनिया इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में जा रही है। अब हम कह रहे हैं कि हमारा अगर पेशेंट विद डिसेबिलिटी भी है तो उसकी एबिलिटी को हम इतना चैनलाइज करेंगे, फिर हम डिज़ाइन करेंगे कि उसने ब्रेल पे जाना है या नहीं। तो आपके लिए सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आपका पेशेंट, ये पेशेंट जो 10 या 15 या 14 साल की एज पे आ गया है और अभी इसके पास नियर विजन इतनी अच्छी है कि ये रीडिंग एंड राइटिंग कर सकता है, अपनी स्कूल एजुकेशन को अनएडेडली जारी रखे हुए है, ये और इस तरह के बहुत सारे पेशेंट, क्या इन्हें स्पेशल एजुकेशन में जाना चाहिए? क्या इन्हें ब्रेल उस लर्निंग में जाना चाहिए? क्लिनिकली हम इसके ऊपर हम लो विजन वालों का हेड नोड यही कहता है कि नहीं। जब हम ये काउंसल करके अपने पेशेंट को भेजते हैं कि आपने उसमें नहीं जाना, तो एक काउंटर नैरेटिव स्पेशल एजुकेशन सिस्टम से आ रहा है। वो वही है जो यहाँ पर एक चैलेंज अभी हमने देखा इसी को मसीरा के केस में। क्या है वो कि पेशेंट ने 2 साल में 40% विजन या विजुअलिटी को लॉस किया है। अब क्या अगले 5 या 10 साल में उसकी विजुअल एबिलिटी मजीद प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करेगी? और अगर करती है तो इस वक्त वो 8th ग्रेड में है, ठीक, अभी वो 8th ग्रेड में है, और अगर उसकी विजुअल एबिलिटी डिक्रीज करती है और वो 10th ग्रेड तक चला जाता है और वो काउंटिंग फिंगर या हैंड मूवमेंट पे भी चला गया,
तो अब मैंने अभी जो स्पेशल एजुकेशन वालों का जो काउंटर नैरेटिव हमारे सामने आता है वो ये कि पेशेंट को हर हाल में ब्रेल पे होना चाहिए। दो ऑप्शन है, एक के ब्रेल एज अ सब्जेक्ट ले ले या उसकी सारी लर्निंग ब्रेल पे की जाए। हम उनके साथ जब बैठ के इन केसेस को डिस्कस करते हैं। प्रोग्रेसिव विजन लॉस के साथ आ रहे हैं ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्रोग्रेसिव विजन लॉस के साथ जब आपका पेशेंट आ रहा है तो आप उसको डुअल मीडियम पे रखें, डुअल लर्निंग मीडियम पे शुरू से रखें। जब आपको पता है कि ये इसको एक ऐसी डिजीज़ है जो प्रोग्रेस करेगी विद पैसेज ऑफ टाइम, तो आप उसे शुरू से डुअल मीडियम पे रखें। जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आपको पता है कि इसने एक ना एक दिन ब्लाइंड हो जाना है, फिर ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चला जाएगा, तो आप उसे पहले से ही लर्निंग मीडियम ब्रेल भी रखें और विजुअल भी रखें। ब्रेल को हम टेक्टाइल लर्निंग मीडियम कहते हैं और विजुअल लर्निंग मीडियम आपको पता है क्या क्या होता है कि नॉर्मल बुक्स पढ़े, जैसे रिहैबिलिटेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, थेरेपीज़ हैं, डिवाइसेस हैं, वो सारे यूज़ करके आप उसे विजुअल भी रखें। जब तक वो देख सकता है तब तक वो देख के पढ़ेगा, अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय करेगा, और जब उसे नज़र आना बंद होगा तो वो एकदम शॉक पे नहीं चला जाएगा, उसको ब्रेल ऑलरेडी आता होगा तो वो अपने आप को ईजिली ब्रेल पे एडजस्ट कर लेगा। थैंक यू। मैडम के उस पे कमेंट पे एक वो है कि जब हमने ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मैडम देती हैं, हम इसी तरह लोवियन क्लिनिक ने हमेशा अपने पेशेंट के लिए जो प्रपोज्ड लर्निंग मीडियम है उनको इसी तरह से हमेशा एडवाइस किया। लेकिन आगे फिर जब हमने इनको परसू किया इन्हीं केसेस को स्पेशल एजुकेशन के उसमें, तो हमें ये चीज़ सामने आई कि उनके पास दो फैसिलिटीज़ हैं, एक ब्रेल है और एक विजुअल इम्पेयरमेंट वाले या बोल्डर फोन्ट्स वाले हैं। जो ब्रेल वाले हैं उनका डिफरेंट सिलेबस है, जो बोल्डर फोन्ट्स के साथ है या विजुअल इम्पेयरमेंट में मैंने एलवी डाला हुआ है, ठीक है, वो लोग ये उनमें उनका डिफरेंट सिलेबस है, मतलब सिलेबस की जो स्कीम है वो डिफरेंट है। स्मार्ट सिलेबस दोनों के लिए ऑफर किए जाते हैं। अब इनके पास वो इनको एक ही उसमें लेकर के नहीं चलते। जब हमारे कुछ केसेस ऐसे, अगर हमारा पेशेंट 15 साल के बाद ब्रेल पे पढ़ता है तो वो अपनी विजुअल एबिलिटी को लॉस नहीं करता। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, इनके ऊपर स्टडीज भी की हैं हमारे स्टूडेंट्स ने। लेकिन अगर हमारा पेशेंट 10 साल से पहले ब्रेल पे पढ़ना शुरू कर देता है, साथ में बोल्डर फॉन्ट भी, जाहिर है उसने देखना है, इमेजेस देखने हैं, उनका जो डुअल लर्निंग मीडियम जो देते हैं ना वो ये कि आपने लिखना सारा ब्रेल पे है, पढ़ने के लिए आप विजुअली अपने जो बोल्डर फॉन्ट्स हैं वो यूज़ करें। ये उनका डुअल लर्निंग मीडियम है। मतलब कि इस तरह जब हमने उनको देखना शुरू किया तो हमारा सारा का सारा पेशेंट जो है उनका फोकस उस पर चला गया। ब्रेल विजुअल पेशेंट के लिए लर्न करना एक बड़ा चैलेंज होता है, वो उसके ऊपर उनकी प्रोग्रेस में कमी आगे पीछे जो भी। लेकिन यहाँ ये है कि अगर हम उनको ये कहें हमारे पेशेंट को लर्निंग के लिए, या जो लर्निंग से मुराद ये है कि अब उसने असेसमेंट देनी है तो वो ब्रेल पे देगा, है वो विजुअल पेशेंट। अगर उसने कुछ भी अपना एग्जाम क्लियर करना है या कुछ भी करना है तो भी वो ब्रेल पे देगा, है वो विजुअल पेशेंट। विजुअली उसने अपनी बुक्स को देखा है, पढ़ा है, लेकिन उसने सारा राइटअप क्या ब्रेल पे करना है। हमारे पेशेंट का फोकस सबसे ज्यादा ब्रेल पे जाना शुरू हो जाता है क्योंकि ये एक नया लर्निंग चैलेंज है उसके लिए, अब वो उसके ऊपर आना शुरू हो गया। तो जो हमने इस सारे उसको देखने के बाद वो दिया कि हम कहते हैं कि उसको एक ब्रेल एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, ब्रेल एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाए ताकि वो स्पेशल एजुकेशन में जाने का उसको फायदा रहे। कल को जब वो मेन स्ट्रीम से पढ़ता हुआ ब्लाइंड हो गया है और अब वो उसमें चला गया है, तो इसके ऊपर भी वैसे एक डिबेट है कि हमने मेन स्ट्रीम से स्पेशल एजुकेशन में कब भेजा बच्चे को, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि उसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाए और इसमें हमने तकरीबन 50 to 70% प्रोग्रेस अटेन कर ली है स्पेशल एजुकेशन डायरेक्टरेट के साथ डायलॉग करके। तो मेरा आपको ये सारा इसके ऊपर डिस्कशन का पर्पस ये है कि कल को जब आपके साथ इस तरह का एक पेशेंट आता है तो आपने उसके लिए एक राइटअप करना है। जब लोवियन के लिए लोवियन असेसमेंट होगी तो अब आपका पेशेंट दो तरह से आपके राइटअप के ऊपर डिपेंडेंट है। एक ये कि उसको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक, आप राइटअप करोगे, साइन स्टैम्प करोगे, उसको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेशन के लिए बाकी उसका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा,
दूसरा, उसका जो एडमिशन है, अगर वो मेन स्ट्रीम से हटके स्पेशल एजुकेशन में जाना चाह रहा है तो उसके लिए भी आपका राइटअप रिक्वायर्ड होगा। उसमें आपकी एडवाइस, जैसे मिस ने आपको बताया कि आपने एडवाइस में हमेशा अपना ड्यूअल प्रपोजल राइटअप देना है। बस आप एज के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखें, 10 साल से पहले बच्चे को डुअल ना दें, ठीक है। अगर उसकी विजुअल एबिलिटी है इतनी कि वो आपका 1M नियर चार्ट पढ़ लेता है, ठीक है, 1M तक अगर वो पढ़ रहा है, पढ़ के बता रहा है, तो फिर आपने, जैसे आपने देखा कि हम लोग इन क्लिनिक में उसका सिलेबस, उसकी किताब उठाते हैं, हम कहते हैं कि अपनी किताब लाओ, अपनी राइटिंग बुक लेके आओ, हम उसकी राइटिंग एंड रीडिंग एबिलिटी उसके अपने करिकुलम की बुक के ऊपर देखते हैं। अगर वो है तो फिर आपने उस पे उसको डुअल मीडियम भी एडवाइस नहीं करना अगर उसका 10 साल से पहले की एज है। 10 साल से बाद है तो आप इसी तरह ही देंगे, यही रूल है, ठीक। एंड एक और चीज वो ये कि आपने उनको एज अ सब्जेक्ट उनके साथ डायलॉग भी करना है। यही पेशेंट जब लेके जाएगा कागज आपका एडमिशन के लिए, तो उनका आगे से कंसर्न होता है, उनके साथ जब हम डायलॉग करते हैं वो ये कहते हैं, वो हमेशा हमारे पेशेंट को इसी बात पे काउंसिल करते हैं कि विजन आपकी लॉस उस पर जाएगी और आप ब्लाइंड हो जाएंगे। तो आपने कभी भी इस नैरेटिव को अपने पेशेंट के उसमें नहीं आने देना। ये उसकी शायद उसकी किस्मत में लिखा हो, लेकिन आपकी तरफ से या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये वाला प्रपोजल पेशेंट के लिए हेल्दी नहीं है। आपने उसको पूरी जिंदगी के लिए ये चीज इस जहन में नहीं डाल देना कि अब वो मजीद आगे नहीं देख सकता। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और ऑडियंस है, तो ये अगले वाला ऑन कर दीजिए। तो वरना मैंने सारी एक्सेंट्रिक फिक्सेशन इसी में बता दी है, क्योंकि ये लोग तो लोवियन क्लिनिक के साथ अटैच रहे हैं, ने भी काम किया हुआ होगा, और बाकी लोगों को तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन शायद लोवियन क्लिनिक के साथ नहीं रहा। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि लोवियन रिहेबिलिटेशन आजकल किस उस पर होती है। लोवियन रिहेबिलिटेशन मिस आयशा ने डिस्कस किया, लोवियन डिवाइसेस के साथ होती है। फिर आजकल जो हम उसे लोवियन डिवाइसेस के साथ, थेरेपीज के साथ करते हैं, जो अब हम यहाँ आपके सामने डिस्कस करेंगे कि जब हम ये करते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं। इसे आप देखिएगा, और अगर कोई सवाल है तो मुझे बहुत खुशी होगी आंसर करने में। लोवियन आप सबको पता है कि इरिवर्सिबल विजन लॉस है और इसे करेक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब कि 100% आप वही एबिलिटी को वापस रिस्टोर नहीं कर सकते स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मेथड के थ्रू। और ये जितने भी डेफिनेशंस हैं ये आप सबको पता है। क्लिनिकली सारी चीज़ें इन्हीं डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। बहुत दफ़ा हमारे पेशेंट की VN66 होगी, डायग्नोज्ड वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का पेशेंट होगा विद मार्कली डिक्रीज्ड कंट्रास्ट फंक्शन, तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि लोवियन क्लिनिक का दरवाजा बंद है आपके लिए। लोवियन क्लिनिक उनके लिए खुला है अगर वो फंक्शनल डिसेबिलिटी के साथ आते हैं। फंक्शनल डिसेबिलिटी और तरह से प्रिवेंट कर सकती है, फील्ड लॉस के साथ, कंट्रास्ट लॉस के साथ, ठीक है, ग्लेयर सेंसिटिविटी के साथ, बहुत सारी और चीज़ों के साथ हो सकते हैं VN66 हो, 66 पढ़ लेते हो, ठीक है। तो लोवियन रिहेबिलिटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट तरह से होती है। मैडम ने आपके सामने बात की कि हम इसे लोवियन डिवाइसेस के साथ करते हैं, लोवियन थेरेपीज के साथ करते हैं, फंक्शनल विजन थेरेपीज के साथ करते हैं। और जब हम ये सारी चीज़ों के साथ रिहेबिलिटेशन करवा लेते हैं तो फिर हम उस नई विजन को फंक्शनल करने के लिए या उसे पेशेंट की लाइफ का पार्ट बनाने के लिए ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की ट्रेनिंग देते हैं, या ये भी थेरेपीज की फॉर्म में परफॉर्म करवाते हैं। रिहेबिलिटेशन होती क्या है, ठीक है, ये लोवियन एड्स के साथ, जिसमें मैग्नीफायर और कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं। आजकल AI बेस्ड बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें मैग्नीफिकेशन के ढेर सारे ऑप्शंस हैं। उसमें आपकी पोलैरिटी के डिफरेंसेस हैं, आप पोलैरिटी को डिफरेंट कर सकते हो, फॉन्ट के कलर को, साइज को हर तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैग्नीफिकेशन की दुनिया मैग्नीफायर के अंदर लिमिटेड नहीं रही है। आपके जो मोबाइल फोन्स हैं उसका कैमरा एक मैग्नीफायर है,
बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच एबिलिटीज है। खाली टेक्स्ट टू स्पीच ही नहीं, वो कैमरा आपको, जिस तरह NVN-AI एक ऐसी ऐप है जो कि ऑरकेम ग्लासेस की आपको वो देती है। ऑरकेम ग्लासेस AI बेस्ड एक ऐसे ग्लासेस हैं जो कि पेशेंट एक कैमरा लेंस की तरह के ग्लासेस के साथ अटैच होते हैं और वो सराउंडिंग की हर चीज़ को स्पीक करके पेशेंट को बताता है। इसी तरह NVN के अंदर भी ये सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि इस्तेमाल की हमारे लोवियन के पेशेंट लोवियन क्लिनिक में जब आते हैं तो ट्रेन किए जाते हैं AI बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए। ये भी हमारा लोवियन का पुराना क्लिनिक, इसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, विदाउट डिवाइस, पहले डिवाइस के साथ हम पेशेंट की VN असेस करते हैं, फिर जब हम लो VN थेरेपी की बात करते हैं तो हम डिवाइसेस यूज करवाते हैं और फिर उसके बाद विदाउट डिवाइस उसकी VN दोबारा असेस करते हैं। ये लो VN असेसमेंट के बाद रिहेबिलिटेशन का प्रोसीजर है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिक में हम 45 मिनट की थेरेपी का सेशन देते हैं लो VN पेशेंट को। इसलिए लो VN की जो मैनेजमेंट है जी, रूला लो VN कंसल्टेंट, वेलकम हियर। कैसे हैं आप? 45 मिनट जैसे हमने कहा थेरेपी दी जाएगी। लो VN असेसमेंट के लिए जहन में रखें कि आपका पेशेंट 1 घंटा कम से कम और इससे ज़्यादा टाइम लेगा। सो भी पेशेंट और पेशेंट के साथ आपने बहुत ही स्मूथली, स्टेडली, सुकून के साथ चलना है और फिर हम यही थेरेपी घर में 2 आवर्स के लिए प्रपोज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि कम से कम अगर मसीरा घंटा एक भी या 45 मिनट एक भी डेली एक भी थेरेपी का सेशन रोज लेती तो हम रिजल्ट डिफरेंटली देखते। तो एक्सटेंट, अच्छा यहाँ सवाल आता है, जैसे हमारी लास्ट स्लाइड में सवाल ये था कि क्या है लो VN थेरेपी कि उसकी VN जो 624 पे गुड रिफ्रैक्शन के साथ अनएडेड VN हो रही है, विद लो VN डिवाइस 0066 हो रही है और जब आपने उसको 45 मिनट की ड्रिल करवाई है उसके बाद जब आपने VN ली है तो आपके पेशेंट की VN 618 हो गई है। अभी जब हमने डेफिनेशन की बात की थी तो डेफिनेशन पे क्या था कि इरिवर्सिबल VN लॉस है। यहां सवाल आता है कि आपके पेशेंट की जो अनएडेड ग्लासेस के साथ, स्पेक्टिकल के साथ VN है 624 से 618 हो गई, तो ये तो डिनाइल है आपके लो VN की डेफिनेशन पे ही। मुझे कोई बता सकता है? हाँ जी, जिन्होंने लो VN पे काम किया है वो बता दें ये क्या है। लो VN कंसल्टेंट, नो आंसर। हाँ जी, इकरा आप बताएं। आपने कहा कि लो VN का पेशेंट जो है वो होगा जिसकी VN, और अगर वो 6 हो गया तो वो लो VN का पेशेंट नहीं है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर पेशेंट डायग्नोज्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ है और प्रेजेंटिंग VN 6 है तो मैंने कहा कि लो VN क्लिनिक का दरवाजा उसके लिए भी खुला है। ठीक है, उसके लिए उसको भी रिहेबिलिटेशन रिक्वायर्ड है क्योंकि उसका कंट्रास्ट बहुत ज्यादा लॉस है, उसके बाकी फंक्शन पे वो आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल फिर से यहाँ आ गया दोबारा वापस कि जब हमने उसे, मैं आपको जो चीज समझाना चाह रही हूँ वो यही है कि मॉडिफिकेशन कहाँ पे की, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग के अंदर हमने उसको मॉडिफिकेशन किया कि आप इसको इंसिस्ट किया है ताकि वो अपनी जो रेजिडुअल विजन है उसको क्या कहते हैं। रेजिडुअल VN क्या है? रेजिडुअल VN वो है जहां से उसका एक चीज ये है कि उसने डेवलप की है VN बिल्कुल एग्जैक्टली फोविया के किसी एक पॉइंट के साथ जो उसका व्यूअल एंगल है। अब आपने क्या किया है, जो उसका व्यूअल एंगल के ऊपर फोवियल लॉस था, जो उसका फोवियल लोकस लॉस था, जिसकी वजह से 624 वाला एंगल भी सिर्फ वो देख रहा है, 66 वाली एंगल पे जा ही नहीं रहा है।
तो आपने क्या किया है कि जब आपने रिहैबिलिटेशन दी है, जब उसने टेलीस्कोप लगाई है, तो उसका एंगल आपने इतना बढ़ाया है कि उसको 6 वाली भी लाइन अब वो रिजॉल्व कर रहा है। अच्छा, जब आपने उतार दिया, तो फिर क्या किया है आपने, जैसे आगा ने बताया कि आपने यस बिल्कुल, अब आपने उसका जो न्यू प्रेफर्ड लोकस है, फोवियल लोकस, वो आपने स्टिमुलस के साथ, जो आपने थेरेपी 45 मिनट दी है कंटिन्यूस स्टिमुलस के साथ, आपने विजुअल एंगल को न्यू हेल्दी फोवियल लोकस पे टेम्परेरीली शिफ्ट कर दिया, तो उसकी विजन में क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट आ गई। और ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। एक डेवलप्ड विजुअल एंगल है, वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, वो वापस अपने 624 पे आ जाएगा। अब सवाल फिर वही है कि लो विजन थेरेपी वर्सेस डिवाइसेस, कि आपके पास, जैसे मैंने कहा कि जब हमारे पास पेशेंट आ रहा है, हम देख रहे हैं इंप्रूवमेंट आ रही है, हम ब्लाइंडली, हम हर तरह से पेशेंट को इसी पे डाले जा रहे हैं, थेरेपी एंड बस थेरेपी। और मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि पिछले 4 साल के इसी के ऊपर काम करने के बाद, चूंकि मेरी रिसर्च भी रूअल्लाह नोज के यही थी थीसिस में, तो मसला ये है कि जब हमने 4 साल इसी को देखा है आगे, तो हमने देखा कि हमारे 80% पेशेंट जो हैं वो इसके साथ नहीं चल रहे, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्या ऐसी चीज है कि हम अपने पेशेंट को वापस इसी पे लेके आए, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। आपके पेशेंट को किसी किस्म की डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं, आपके पेशेंट को किसी किस्म की कोई मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, खाली जस्ट फोकस फिक्सेशन के साथ, फिक्सेशन ट्रेनिंग के साथ, और उसको ज्यादा टाइम तक यूज करने से वो फंक्शनल कर सकता है न्यू लोकस को। और फिर जब हम उसको स्पेस फिक्सेशन थेरेपीज देते हैं, मल्टीपल और थेरेपीज देते हैं एट क्लिनिक, फिर हम उसे प्रपोज करके एक थेरेपी का प्लान डिजाइन करके टाइम के साथ उसको पकड़ाते हैं कि घर में इतने बजे इतने से लेके यहाँ तक ये वाला परफॉर्म करना है, फिर इस तरह परफॉर्म करना है। और फिर लॉग इन क्लिनिक हमेशा खुला है उसके लिए कि वो 15 दिन के बाद, 45 डेज के बाद, 6 वीक के बाद किसी भी टाइम वो तशरीफ लाए, उसको रिपीट किया जाएगा, कभी भी उसको दोबारा उस लॉन्गर फॉलोअप पे नहीं डाला जाता। फिर भी वो परफॉर्म नहीं करता, तो फिर हम उस पे दूसरे उस पे लेके जाते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन इज दिस वन, जो कि डिवाइसेस हैं, या डिवाइस जेब में डाल के रखें, बोर्ड पढ़ना है तो डिवाइस के साथ देख ले, किताब पढ़नी है किताब के साथ देख ले। ये सारे ऑप्शन आप अपने पेशेंट को दोगे, लेकिन हम चूंकि अपने इसके ऊपर कंटिन्यूअस रीडिंग अटेम्प्ट्स जो है ना, ये जैसे हम बात कर चुके हैं, दिस सेंसरी स्टिमुलेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेजिडुअल फंक्शनल विजन। अब आपके पास जब आपने उसकी विजन देख ली विद डिवाइस, तो अब आपको आइडिया हो गया है क्लिनिशियन को कि आपके पेशेंट की रेजिडुअल फंक्शनल एबिलिटीज दिस वन। अब आप अपने पेशेंट के विजन को वहां तक एक्सपेंड कर सकते हो। मतलब यहां से ये आ रहा है कि आपका पेशेंट विजुअली 100% रिस्टोर हो सकता है। और इसके ऊपर हमने डिफरेंट स्टडीज की हैं, तो हमें ये पता चला है कि ये पेशेंट का जो ये वाला फंक्शनल एबिलिटी की रिस्टोरेशन है, ये 30 एज तक की जा सकती है, 100% तक। उस तक आपका पेशेंट की जो लोकस है वो डिजनरेट करना अभी नहीं शुरू किया है, ठीक है। बहुत दफा ऐसा देखा है मैंने कि जब पेशेंट आफ्टर 40 आ रहा है तो वो न्यू लोकस के साथ बहुत अच्छा फंक्शन नहीं देता। जैसे ही उसका साल गुजरता है अब वो डिजनरेशन, वैसे ही उसकी सिनाइल डिजनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। उसकी जो फोवियल सेंसिटिविटी है वो वैसे नॉर्मली एजिंग की वजह से कम हो रही है, तो वो हमारे साथ उस तरह डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे रहा। लेकिन ये वाली एज ग्रुप जिसने अभी जिंदगी गुजारनी है, 12 साल का बच्चा, ठीक है, उससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी काउंसलिंग कितनी स्ट्रांग है, आपका पेशेंट, उसके अटेंडेंट कितने काउंसिल्ड हैं आपकी प्रपोज्ड लोवियन मैनेजमेंट प्लान के साथ। कंटिन्यूअस स्टिमुलेटिंग थेरेपीज ये हम देते हैं
फंक्शनलाइज करने के लिए रेटिनल एरिया जो हमने अब लोकेट कर लिया है। अब हम कहते हैं कि यही थेरेपीज घर में 2 घंटे परफॉर्म करिए। हम लिख के कैलकुलेट करके डिजाइन करके बताते हैं कि 45 मिनट एक सिटिंग में इस तरह इस कैलकुलेटेड टारगेट को देखना है और इस तरह मोबाइल टारगेट्स को देखना है, टेलीविजन स्क्रीन को फोकस करना है। ये सारा प्लान दिया जाता है। और अगर कोई समवन आप में से इंटरेस्टेड है तो वो लोवियन रिसोर्स से, हमारे लोवियन क्लिनिक से ये ले सकता है कि ये थेरेपीज का प्रॉपर थेरेपी जो दी जाती है इसका क्या लेआउट है पूरे का पूरा। उसमें फिर हम अपने पेशेंट का इम्प्रूवमेंट स्कोर देखते हैं, कितना हमारा पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं, क्या उसने परफॉर्म किया था, उसने सारा डाटा चेकलिस्ट उसने की है कि नहीं। और इससे ही आइडिया हो जाता है पहले दूसरे फॉलोअप पे कि पेशेंट आपके साथ चलने वाला है कि नहीं। क्योंकि रिहैबिलिटेशन या थेरेपीज एक ऐसी चीजें हैं जिसमें आपने रिजल्ट को चेंज किए बिना करते जाना है और रिजल्ट आपको मिलेगा। हर केस में हम क्लेम नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि हमेशा कि कल को आओगे जब ये करके तो दुनिया बदल जाएगी, ये जैसे मैंने पहले कहा। अब आपने जो नया फंक्शनल लोकस फोबिया में स्टिमुलस दे के फंक्शनल किया है, इतना कि आपका लॉगमार चार्ट पढ़ के बता रहा है, इसको उठा के चलने पे कहेंगे तो ये फिर वही विजुअली इंपेयर्ड एबिलिटी के साथ उठ के चलेगा। याद रखें, ऐसे नहीं होगा कि उठ के चलते ही उसकी दुनिया बदल गई है, या वो हाथ पकड़ के आया था तो अब हाथ छोड़े बगैर वो चला जा रहा है और उसका कंट्रास्ट इतना अच्छा हो गया उसे हर चीज पता चलना शुरू हो चुकी। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जो नया फंक्शनल आपने लोकस स्टिमुलेट किया है, अब इसका और पुराने का फंक्शनल एबिलिटी का डिफरेंस आता है। पेशेंट को कुछ भी नहीं नजर आता एकदम से जब वो उठता है, तो हो सकता है कि वो पहले से भी लॉस एबिलिटी के साथ चले। तो फिर हम उसको, जो हमारे पास इसका प्रपोज प्लान है वो ये है कि हम उसको स्पेस फिक्सेटर थेरेपी देते हैं। हम उसकी एबिलिटी को स्ट्रेंथन करते हैं, फील्ड में बढ़ाते हैं कि वो एक पॉइंट पे देखेगा, दूसरे को फोकस करेगा। ठीक है, जैसे आपको लोवियन क्लिनिक में काम करने वालों को पता है स्पेस फिक्सेटर एबिलिटी क्या है। यहाँ पर एक फिक्सेटर आप देख रहे हैं, या आप गूगल भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी स्पेस फिक्सेटर थेरेपी आपको उसके साथ मिल जाती है। इसके डिज़ाइन के साथ ये जो रेड स्पॉट है इसको फोकस में रख के बाकी सारे स्पॉट्स को वो फोकस करेगा, देखेगा, तो उसका लिमिटेड जो फील्ड है नए लोकस के साथ उसकी फंक्शनल एबिलिटी स्टैंड करेगी और वो देख सकेगा यहाँ से यहाँ तक। और ओरिएंटेशन थेरेपीज देंगे हम क्लिनिक के अंदर ही, हमारे इसको परफॉर्म भी करवाते हैं, बाहर हमारा जो हॉलवे है उसमें भी परफॉर्म करवाते हैं, ताकि हमारा पेशेंट देख सके कि उसने हर्डल स्ट्रगल्स और इनके साथ इस तरह से स्ट्रगल करके स्ट्रेट अहेड चलना है नए लोकस के साथ। और फिर लोवियन में हम यही, जैसे हमने बात कही कि जब हम पहले इसको कर रहे थे तो हम नियर वियन के ऊपर हमारे पास एक डाउट था कि हम इसको नियर पे मैग्निफिकेशन देंगे। तो जैसे हम पहले दे रहे थे, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि रिसेंटली हमने इसी साल डेटा कलेक्ट किया है कि जैसे ही हम थेरेपी देते हैं तो उसके बाद नियर वियन इंप्रूव करती है क्वांटिटेटिवली और रीडिंग स्पीड भी बढ़ती है। वो सून आप देख सकेंगे वो आर्टिकल के इसका उस पर भी इफेक्ट आना शुरू हो चुका है। लेकिन हमारे पास अगर वो पेशेंट इस तरह स्कूल एज में आ रहा है तो हम दोनों चीज़ें ऑफर करते हैं ताकि उसकी लाइफ चलती रहे। जैसे हम पहले केस डिस्कस कर चुके हैं मसीरा का, हर पेशेंट की नियर विजन 100% नहीं हो सकती। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डिस्टेंस विजन में कोई इशू ही नहीं है, पेशेंट फंक्शनल है, हाथ पकड़ के चल के नहीं आया है, लेकिन रीडिंग एबिलिटी लॉस है। जो रीडिंग के लिए जब उसकी कन्वर्जेंस होगी तो जो उसका लोकस बनता है वो लॉस्ट है, और अगर उसको बढ़ाते हैं तो उसकी फ्यूजनल एबिलिटी कम हो रही है, तो उसकी नियर विजन किसी तरह से रिस्टोर नहीं हो रही है विदाउट डिवाइस। ऐसे केस में फिर हम डिवाइस देंगे। डिवाइस के दो ऑप्शन है, यहाँ आप देख रहे हैं मैग्निफिकेशन के दो ऑप्शन है, या तो डिवाइस यूज करेगा या फिर स्पेक्टिकल यूज करेगा। इसको हम मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल कहते हैं। ठीक है, ये उसी मैग्निफिकेशन के साथ जो उस डिवाइस के अंदर लगी हुई है 2x 3x, वही 2x 3x का इसने मैग्नीफाइंग फंडा ग्लासेस रीडिंग के लिए यूज कर रहा है ताकि वो हैंड फ्री हो सके,
ताकि वो पढ़ सके और साथ में अपना पेपर अटेम्प्ट भी कर सके, नियर में दे सके। लोवियन मैग्निफिकेशन आपने लोवियन क्लिनिक्स में देखी है, नहीं देखी है तो लोवियन क्लिनिक के दरवाजे खुले हैं हमेशा, किसी भी टाइम आप आके देख भी सकते हैं। और लोवियन के उसमें क्लिनिक में आप हर टाइप का मैग्नीफायर देख सकते हैं। हम बल्कि आज को आपको हैंड्स ऑन कराने के लिए हमने इसको डिस्प्ले नहीं किया, बिकॉज उस वक्त हमारे पास ये ऑर्डर्स नहीं थी, और अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारे पास लोवियन डिवाइसेस यहाँ पर भी डिस्प्ले के लिए मौजूद है। ये सारे डिफरेंट ऑप्शन हैं मैग्नीफायर के, हैंड हेल्ड मैग्नीफायर, स्टैंड मैग्नीफायर। हैंड हेल्ड के अंदर ऑप्शन है हमारे पास इल्यूमिनेशन के, हैंड हेल्ड के अंदर हमारे पास स्टैंड के भी ऑप्शन है, और ये सारे डिवाइसेस लोवियन क्लिनिक में फ्रीली अवेलेबल हैं टू डिस्पेंस आवर पेशेंट्स। याद रखें, आपके लोवियन क्लिनिक से आपके पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मैग्नीफायर दिए जा सकते हैं। और अगर आप कोई भी पेशेंट देखते हैं जो लोवियन के साथ आता है आपके साथ और उसको किसी किस्म की डिसेबिलिटी है, वो कहता है कि मैं जब जाता हूँ स्टोर में तो मुझे प्राइस टैग पढ़ने में इशू आता है, बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो क्या करेगा? तो हमारे पास पॉकेट मैग्नीफायर की एक रेंज है। पॉकेट मैग्नीफायर अपने साथ रखेगा, कभी भी कुछ उसको किसी भी टाइप से मसला आ रहा है तो वो अपनी लाइफ के बाकी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बात कही कि मॉडर्न एज के अंदर आपके मोबाइल का कैमरा ही एक मैग्नीफायर है, लेकिन याद रखें जो हमारे पेशेंट 50s में हैं बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं है अपने मोबाइल कैमरास के साथ, तो पॉकेट मैग्नीफायर अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है उनके लिए। इस तरह जैसे मैडम आपसे लोवियन असेसमेंट की बात कर रही थी कि आपने देखा सीसीटीवी माउस की बात हुई थी। सीसीटीवी माउस यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे लोवियन क्लिनिक में मौजूद है, किसी भी स्क्रीन के साथ अटैच किया जा सकता है। ये एक डिवाइस है, इसमें आपको मोबाइल की तरह पकड़ के एक हाथ में नहीं रखना पड़ता। ठीक है, अगर आपने मोबाइल का कैमरा यूज़ करना है तो आपने हाथ में पकड़ के उसके कैमरा को फोकस करना होगा। सीसीटीवी डिवाइस एक माउस की तरह है, वो आप अपने चार्ट पे रखेंगे या अपनी बुक पे रखेंगे तो वो स्क्रीन के ऊपर मैग्नीफाई कर देगा। और उसके अंदर ये होता है फ़ायदा कि इसमें पोलैरिटी का डिफरेंस भी आ जाता है, कलर भी चेंज किया जा सकता है, कंट्रास्ट बढ़ सकता है और साइज भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। जो दूसरा एक और डिवाइस है, ये डिवाइस आपको ये भी सीसीटीवी ही की सॉर्ट काइंड है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, इसमें टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन भी है, ये आपको रीड करके भी बताएगा कि आपको क्या देख रहे हैं जिसके ऊपर जो आपके उसमें आ रहा है। बाकी इसमें स्पीड को आगे पीछे कर सकते हैं, स्पीड रीडिंग स्पीड कम कर सकते हैं आप, इसमें कलर पोलैरिटी हर चीज़ बदल सकते हैं। मैडम ने आपके साथ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट या लोवियन रिहेबिलिटेशन के वो डिस्कस किए, जिसमें ऑप्टिकल के अलावा नॉन ऑप्टिकल की बात हो रही थी। जब कंट्रास्ट का फंक्शन देखा जाएगा, जैसे हम असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट में पहले वीएन आ जाती है, नियर वीएन आ जाती है, जिसी के ऊपर हमारा सारे का सारा फोकस होता है। हम वीएन पे, नियर वीएन के ऊपर हमें लगता है कि सारा यही है। अगर कोई हाउस होल्ड है जिसने किचन में काम करना है, उसको पता नहीं है कि जो मैंने अभी साल्ट का बॉक्स खोला है तो उसका ढक्कन मैंने कहाँ रख दिया है, अब मुझे नहीं समझ आ रही, काउंटर पे कहाँ है। तो ये डिसेबिलिटीज़ वो हैं जो एक पेशेंट को इंतहाई फ्रस्ट्रेट करती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि घर में लड़ाई झगड़ा इसी वजह से हो रहा है, बट शी कांट एक्सप्रेस कि मेरी डिसेबिलिटी क्या है। 80% हमने देखा कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो बता ही नहीं रही हैं, और अगर वो बताएंगी तो उनको किसी तरह स्टिग्मेटाइज किया जाएगा। एक चीज़ ये, बहुत दफ़ा दूसरी चीज़ ये आती है कि विमेंस आर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इतनी एक्सप्रेसिव नहीं होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंट्रास्ट और इस तरह की चीज़ों के साथ कंट्रास्ट को इम्प्रूव करने से बढ़ सकती हैं। अब सवाल ये आता है कि कंट्रास्ट को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा। क्या आपकी वापस चले जाते हैं मैनेजमेंट प्लान के ऊपर, हमने कहा एक साइंटिफिक सेशन डेवलप करो, न्यू लोकस पे चले जाओ, तो क्या उस तरह से कंट्रास्टेबिलिटी बढ़ेगी? हाँ जी, एक हेड नोट हुआ है कि नो? वाकई में कंट्रास्टेबिलिटी नए लोकस के साथ एकदम से नहीं बढ़ेगी। कंट्रास्टेबिलिटी आपके रॉड्स एंड कोन्स के कॉम्बिनेशन के साथ आ रही है। आपकी कंट्रास्ट वीएन वहां से आ रही है जहां आपके मिड पेरिफेरी के अंदर आपके रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स एक बाइपोलर के साथ अटैच हो रहे हैं। याद रखें, आप अगर रेटिना के ऊपर चले जाओ वापस, तो ये वहां से आ रही है, ये आपके फोबिया के डायरेक्ट फंक्शनल होने से नहीं आ रही। फोबिया आपको वहां से दे रहा है, शार्पनेस दे रहा है,
लेकिन कंट्रास्ट का फंक्शन आपको मिड पेरिफेरी से आ रहा है, जहां पर आपको एक ही बाइपोलर के साथ या एक ही चेन पे रॉड्स एंड कोन्स दोनों मिल रहे हैं। अगर वहां से डिसेबिलिटी है या वहां पर आपका लॉस हो रहा है, डिजनरेशन वहां हो रही है, डिस्ट्रॉफी ने वहां अफेक्ट किया है, तो आप खाली एक्सेंट्रिक फिक्सेशन या इस प्रोपोज्ड मैनेजमेंट के साथ उस एबिलिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको नॉन ऑप्टिकल ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। यहाँ हमने एक स्लाइड वो दिया है कि राइटिंग रीडिंग एबिलिटी को आप टाइपोस्कोप से इम्प्रूव करोगे। ठीक है, टाइपोस्कोप को हम ट्रेन करते हैं पेशेंट को, आपने देखा होगा हम बोल्डर मार्कर्स पढ़े हैं, हम कलर्ड मार्कर्स के साथ इनको उसके ऊपर ट्रेन करते हैं कि वो पढ़ेंगे कैसे, चेक साइन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें बना के देते हैं क्लिनिक्स में। कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए हम ऑप्शन देते हैं कि आपकी जो कटलरी है, आपके किचन के बाकी सारे ऑप्शन हैं काउंटर के ऊपर, जिस तरह ये एक प्लेन वाइट वो है हमारा पेशेंट, शायद इसको कंट्रास्ट के साथ ना पता चल सके। आप तो देख रहे हैं जो डिसेबिलिटी के साथ आ रहा है उसको नहीं पता चलेगा कि इसका एज कहाँ है, या ये चेयर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, या उसका किचन का काउंटर कहाँ है, उसने ग्लास रखना है तो वो कहाँ रखे कि वो नीचे गिर के टूट ना जाए पाँव में आके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने उसको एजिंग कलर्ड बतानी है। बल्कि बहुत दफ़ा हमारे उस्ताद कहा करते थे, मिस आयशा को शायद याद होगा, हसन साहब कहते थे कि घर जाके बताया जाता है। लोवियन का जो प्रपोज्ड मैनेजमेंट प्लान है, लोवियन वाले पेशेंट को घर वहीं ही बता दिया जाता कि हाँ जी ऐसे कर लो। हसन साहब खुद घर जाते थे, तशरीफ़ लेके जाते थे, उनके घर के एक एक चीज़ को इंस्पेक्ट करते थे और फिर बताते थे कि आपने इस डिज़ाइन को इसके लिए किस तरह से चेंज करना है। पाकिस्तान के अंदर तो हम इसी तरह चला लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जब आपको कहीं जाके लोवियन सर्विसेज देनी है तो जहन में रखिए कि एक आइडियल प्लान के अंदर लोवियन पेशेंट के विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन आपके पास आया है, उसका जो प्रपोज्ड मैनेजमेंट प्लान है, उसके घर का विजिट भी है, उसका वर्क प्लेस का विजिट भी है। तो देन आपने बताना है कि वो एक्सेसिबल कैसे करेंगे आप, ताकि वो इंक्लूसिवली उसी के अंदर सारी फंक्शनल एबिलिटी को रिस्टोर कर सके। वो किसी दूसरे का हाथ ना थामना पड़े उसे, या कहना ना पड़े कि भाई कहाँ ढक्कन रखा था, या ये मैंने कहाँ से गिरा दिया ये चीज़ को। तो ये आपने चीज़ें सिर्फ दिखानी नहीं है, ट्रेन करना है, बताना है कलर कौन सा है तो क्या लगाएंगे आप। कोई सवाल? कभी लोवियन करते हुए आप जो नए लोग हैं जिन्होंने लोवियन क्लिनिक में शायद काम किया हो या मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं हुआ, कभी लोवियन करते हुए कभी कोई पेशेंट की कोई कंप्लेन आपको मिली हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके पेशेंट तो आते रहते हैं हमारे पास। जी बोलिए। मीन अगर कोई पेशेंट कम्प्लीटली ब्लाइंड हो ना, तो उसको हम एज अ लो विजन पेशेंट किस कंडीशन में कह सकते हैं? अच्छा, कंप्लीटली ब्लाइंड की उसमें आ जाता है। थैंक यू आपके सवाल के लिए कि अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि लोवियन क्लिनिक में ब्लाइंड पेशेंट, ब्लाइंड की कैटेगरी अगर आप डेफिनेशन के साथ जाएं तो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी वो है जिसमें बहुत सारी विजुअल एबिलिटी को भी हम उसमें ले लेते हैं। लोवियन क्लिनिक के लिए एज अ क्लिनिकल असेसमेंट अगर हम देखते हैं तो हमारा पेशेंट अगर किसी किस्म की रेजोल्यूशन एबिलिटी रखता है, रेजोल्यूशन एबिलिटी का मतलब है कि वो यहाँ से भी देख के बता देता है कि ये मेरी उंगलियां कितनी हैं, या वो यहाँ से देख के बता देता है कि ये सफ़ेद लाइन है, और ये अगर हम उस पर चले जाए BRVT पे, BRVT जैसे मैडम ने आपके साथ डिस्कस किया कि लोवियन असेसमेंट के अंदर आपको बताया गया कि काउंटिंग फिंगर, हैंड मूवमेंट, PL ये चीज़ें नहीं होती हैं। हम लोग उसको क्वांटिटेटिवली उस पर डालते हैं। हमारा पेशेंट काली और सफ़ेद धारियों को पहचान रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी आंख के अंदर इतनी एबिलिटी है, फोवियल एबिलिटी इतनी है कि वो दो चीज़ों के अंदर फ़र्क महसूस कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो वो लोवियन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। फिर हम उसको डिफरेंट किस्म की मैग्नीफिकेशन देंगे। लेकिन अगर हमारा पेशेंट ये नहीं बता सकता कि मेरे हाथ मेरे के ऊपर क्या है, या मेरे सामने जो सफ़ेद कागज़ है उसके ऊपर कोई काली धारी है कि नहीं है, हम उसको क्लिनिकली ब्लाइंड कंसीडर करते हैं। अब वो लोवियन रिहेबिलिटेशन के लिए जो ऑप्टिकल रिहेबिलिटेशन है उसके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, अगर वो किसी भी नियरेस्ट डिस्टेंस से कुछ भी पहचान के बता रहा है तो वो
लो वीएन असेसमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए ट्रायल दिया जाएगा। मैम अगर हम उसको क्लिनिकली ब्लाइंड कंसिडर करेंगे ना, तो हम एट द टाइम जाहिर सी बात है वो ब्लाइंड है, तो हम एज ए न्यू ऑप्टोमेट्रिस्ट उसको कैसे हैंडल करे, काउंसल करे? बिल्कुल, हमारे पास जब बिल्कुल भी लॉस है ना, हैंड मूवमेंट भी नहीं है, पीएल भी नहीं है, बहुत दफा उस वक्त भी हमारे पास पेशेंट रेफर हो जाते हैं, कहते हैं लो वीएन क्लिनिक में चले जाएं। तो लो वीएन क्लिनिक में हम क्या करते हैं, एक ब्लाइंड पर्सन है जिसकी विजुअल एबिलिटी किसी भी तरह से नहीं आ सकती है, देन उसका भी आखिरी स्टेज लो वीएन ही बनती है। उसको ये नहीं कहा जाता कि अब आप घर जाएं, क्लिनिकल उससे वो लो वीएन क्लिनिक में भेज दिया जाता है सेटिंग से। हम यहाँ पर उसके लिए हमारे पास ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का ऑप्शन होता है। अब हमारे पास अगर ये पर्सन आ गया है तो क्या उसकी लाइफ इतनी रिस्ट्रिक्टेड है हम कहें कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं ना हो? ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास एक ऑप्शन है उसके लिए कि अब आपने उसको ट्रेन करना है वाइट केन के साथ। हम वाइट केन के साथ उसको ट्रेन करते हैं कि वो कैसे चले फिरेगा। हम उसको साइटेड गाइड के साथ चला के दिखाते हैं, हम उसको इंडिपेंडेंट चला के दिखाते हैं कि अब